Hello, good morning, my dear children. Welcome to the class after a long break. So, today we are going to start with one new chapter of geography, that is agriculture. And this chapter is very much important because you can score marks in this chapter easily without making much effort. So, starting with this chapter, simply all of you know and the word agriculture, right? So the first question I will ask to you, define agriculture. I am not going to answer it. You have to write the answer. What is agriculture? Right. So I am starting with why we are going to study agriculture. So as all of you know that most of the people living in India are mostly dependent upon agriculture. There are lots of people, approximately, as in economics also you read about that approximately 45 or 44% people are dependent on agriculture in India, right? So this is the present data. If you indirectly include all those people who depend upon agriculture, it is almost two-thirds. That means approximately 70% people are directly or indirectly dependent upon agriculture. So it is necessary for us to study about agriculture, right? What are the challenges in agriculture, how we can improve it, how we can improve the salaries or wages of the people who are working in this sector. So all these things we can do only by studying the chapter. So let's start this chapter. So simple line, I told you that India is an important country in terms of agriculture because two-thirds population are engaged in agriculture, directly or indirectly, right? Then it is a primary activities and people need food, people need raw materials for manufacturing, right? That's why it's become necessary to study about agriculture. So first we will start with the types of agriculture. So let's move to the topic, types of farming, right? So types of farming, if you classify the farming type, you can classify it into two types. The first one is subsistence farming, second one is commercial farming. So as name itself suggests that commercial farmings are those farming which is for profit purpose. कॉमर्शियल दैट मीन्स कॉमर्स के लिए इस फार्मिंग की जरूरत होती है जहां पर लोग काफी ज्यादा अमाउंट में क्रॉप्स को प्रोड्यूस करते हैं. Subsistence farming, you can say it is a type of farming which is done for living, self consumption, right? अपने खाने के लिए इसको किया जाता है या फिर अपना जो लाइवलीहुड है उसको अच्छे से चलाने के लिए सब्सिस्टेंस फार्मिंग की जाती है, राइट? सो सब्सिस्टेंस फार्मिंग को हमने दो भाग में डिवाइड किया है. द फर्स्ट वन इज प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग एंड द सेकेंड वन इज इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग, राइट? सो व्हाट इज इट? प्रिमिटिव का मतलब होता है a type of farming which is practiced from ancient time, बहुत पहले से प्रैक्टिस किया जा रहा है, राइट? सो इस तरह के फार्मिंग में क्या होता है हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे. और इंटेंसिव का मतलब ही होता है इंटेंस फार्मिंग, ठीक है? जहां पर काफी ज्यादा इंटेंस फार्मिंग हो रहा हो उसको हम इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग करते हैं. एक एक करके डिस्कस करते हैं. सबसे पहले देखते हैं व्हाट इज. सो तीन तरह का फार्मिंग हम डिस्कस करेंगे. पहला हमारा हो जाएगा प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग, सेकेंड हमारा होगा इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग और थर्ड जो हमारा होगा वो कॉमर्शियल फार्मिंग. सो इस तीनों को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि ये फार्मिंग क्या है, इसके फीचर्स क्या है, ठीक है? क्वेश्चंस कैन बी आस्क्ड व्हाट इज प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग. सो मैं यहाँ पर जो आपको दिखा रहा हूँ ये डिफरेंस के तौर पे दिखा रहा हूँ. मैं आपको डिफरेंस दिखाऊंगा इंटेंसिव का और प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग का, राइट? सो यू कैन इजिली राइट इफ क्वेश्चन कम्स व्हाट इज प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग, तो आपको ये सारे पॉइंट्स. अगर क्वेश्चन आता है व्हाट इज इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग, तो ये सारे पॉइंट्स लिखने हैं. अगर आपसे पूछा जाता है डिफरेंस लिखो दोनों के बीच, तो आपको इस तरह से बना के लिखना है. सो सबसे पहले हम प्रिमिटिव वाला देखते हैं.
द प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग प्रैक्टिस्ड ऑन स्मॉल पैच ऑफ लैंड, राइट। तो यहाँ पे ये जो फार्मिंग किया जाता है इसका लैंड एरिया जो होता है वो थोड़ा छोटा होता है, राइट। इट इज डन विद द हेल्प ऑफ प्रिमिटिव टूल्स, मतलब पहले के जमाने में जो टूल्स यूज किए जाते थे, ठीक है, जैसे हॉ है, डॉ है, राइट, डिगिंग स्टिक्स है, ठीक है। मैं इसका पिक्चर अभी आपको दिखाऊंगा ये कैसा होता है। तो इसके हेल्प से ये लोग क्या करते हैं, फार्मिंग करते हैं। ये प्रिमिटिव फार्मिंग टोटली डिपेंडेंट होता है मानसून के ऊपर, इनके पास कोई इरिगेशन फैसिलिटी नहीं होती, ये टोटली किस पर डिपेंडेंट होते हैं, मानसून पर डिपेंडेंट होते हैं। यहाँ की जो सॉइल फर्टिलिटी है, ये लोग जो करते हैं फार्मिंग करते हैं, इस सॉइल की फर्टिलिटी डिक्रीज होती है, राइट। हालांकि हर एक जगह की सॉइल की फर्टिलिटी डिक्रीज होती है, लेकिन यहाँ पर डिक्रीज इसलिए होती है क्योंकि ये लोग फर्टिलाइजर यूज नहीं करते, राइट। सो जब भी ये सॉइल की फर्टिलिटी डिक्रीज होती है, ये लोग उस लैंड को छोड़ के दूसरे जगह शिफ्ट कर जाते हैं। सो आपने पढ़ा होगा शिफ्टिंग कल्टीवेशन के बारे में। So this shifting cultivation comes under this primitive subsistence farming, right? So यहाँ पर फार्मर क्या करते हैं, जब भी सॉइल की फर्टिलिटी डिक्रीज होती है, वो उस लैंड को छोड़ के दूसरे जगह चले जाते हैं, उस लैंड को क्लियर करते हैं, उस पर जो भी प्लांट्स होते हैं, ठीक है, उसको जला दिया जाता है, जो हस्क होता है उसको जला दिया जाता है, ठीक है, ताकि उस लैंड का जो है फर्टिलिटी इंक्रीज हो जाए। ये जो प्रोडक्शन करते हैं ये ओनली फॉर होम कंजम्पशन करते हैं, सिर्फ घर के खाने के लिए कंजम्पशन करते हैं, मार्केट में इसको सेल नहीं किया जाता है। ऑब्वियस सी बात है, अगर प्रोडक्शन इस तरह से फार्मिंग करेंगे तो क्या होगा, प्रोडक्शन लो होगा। अगर प्रोडक्शन लो होगा तो मार्केट में वो सेल कर पाएंगे क्या, नहीं कर पाएंगे। तो ये सिर्फ अपने खाने के लिए इसको प्रोड्यूस करते हैं। इफ वी टॉक अबाउट इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग, ये जो फार्मिंग है ये ऐसे एरिया में किया जाता है जहां पर की पॉपुलेशन काफी ज्यादा हाई हो, राइट। जैसे फॉर एग्जांपल बिहार, उत्तर प्रदेश इन इंडिया, राइट, हरियाणा, ठीक है। तो ऐसे एरिया में जहां पर पॉपुलेशन काफी ज्यादा हाई हो, वहां पर इस तरह का फार्मिंग किया जाता है, राइट। इस तरह के फार्मिंग में काफी ज्यादा फर्टिलाइजर, इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स, HYV सीड्स और थोड़ा बहुत मशीन्स का भी यूज किया जाता है, राइट। तो ये जो लैंड होल्डिंग होता है, क्योंकि देखो जहां पर ज्यादा पॉपुलेशन होगा वहां पर लोगों के पास जो है लैंड का साइज मीडियम होगा, ठीक है, ज्यादा बड़ा भी नहीं होगा, राइट। तो इसी लैंड में से अगर इसको ज्यादा कल्टीवेशन करना है, तो इस कल्टीवेशन करने के लिए ये लोग क्या करेंगे, फर्टिलाइजर यूज करेंगे ज्यादा से ज्यादा, पेस्टिसाइड्स यूज करेंगे, HYV सीड्स यूज करेंगे, राइट और नॉट। सो ये इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग में होता है। सो दे आर मेनली नॉट इंटायरली, मेनली डिपेंडेंट ऑन मशीन्स, ठीक है, इसको कट करते हैं ना। दे आर मेनली डिपेंडेंट ऑन मशीन्स, ऐसा नहीं है कि सिर्फ मशीन से ही करते हैं, ये लोग हाथ से भी करते हैं, और यू कैन से यहाँ पर लेबर ज्यादा होता है। इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग में लेबर को ज्यादा यूज किया जाता है, ठीक है, और मशीन्स को भी यूज किया जाता है। देन फार्मर कंटिन्यूज टू टेक मैक्सिमम आउटपुट फ्रॉम द लिमिटेड लैंड, ठीक है, इनके पास लैंड जो होता है वो लिमिटेड होता है, कम होता है, और इसी लैंड से ये लोग क्या चाहते हैं, ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन हो। क्यों, क्योंकि इनके पास कोई दूसरा अल्टरनेटिव नहीं है, ठीक है, अल्टरनेटिव दूसरा कोई काम नहीं है, ठीक है। तो ये क्या चाहेंगे कि पूरे साल का जो कमाई है वो इसी छोटे लैंड से हम प्रोड्यूस करके गेन कर लें, राइट और नॉट। सो दैट्स व्हाई वी कॉल्ड इट एज अ इंटेंसिव सब्सिस्टेंस, राइट। नेक्स्ट इज, ये जो प्रोडक्शन करते हैं ये तो अपने लिए तो करते ही हैं, अपने खाने के लिए तो करते हैं, साथ साथ में जो सरप्लस बच जाता है उसको मार्केट में भी सेल करते हैं, राइट। सो इनका जो सरप्लस होता है ये काफी ज्यादा नहीं होता है, थोड़ा सरप्लस होता है। फॉर एग्जाम्पल कि अगर ये लोग एक फैमिली में 10,000 मान लेते हैं कि सॉरी 1,000 kg जो है राइस प्रोड्यूस किया, राइट। टेक एन एग्जाम्पल कि इन्होंने 600 kg खुद के लिए रखा, राइट, और 400 kg क्या किया, मार्केट में सेल कर दिया। तो ये अमाउंट जो मार्केट में ये लोग सेल करते हैं ये काफी ज्यादा नहीं होता है, ये थोड़ा कम होता है, राइट। तो ये है इंटेंसिव और प्रिमिटिव में डिफरेंस, इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग एंड प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग, इसके बीच ये डिफरेंस है, आपको ये लिखने हैं, राइट। कमिंग टू द नेक्स्ट,
टाइप ऑफ फार्मिंग, पहले उसके पहले फोटो देख लेते हैं इंटेंसिव सब्सिस्टेंस कैसा होता है। देखो यहाँ पर कई सारे लेबर्स काम कर रहे हैं, राइट और नॉट। सो मोस्टली ये लोग लेबर पे भी डिपेंडेंट होते हैं, कहीं कहीं पर मशीन्स भी यूज किया जाता है, जैसे कि ट्रैक्टर वगैरह आप देखोगे अपने आसपास भी ट्रैक्टर्स को यूज किया जाता है फॉर प्लॉइंग द लैंड, राइट। तो इस तरह से ये इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग है। अब हम देखते हैं प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग कैसा होता है। लुक एट हियर, देखो यहाँ पर कई सारे लोग जो है, ये हॉ है, राइट, ये है डिगिंग स्टिक्स से ये देखो कर रही है, राइट। इस तरह से जला दिया जाता है, ठीक है, जो प्लांट्स होते हैं ताकि सॉइल की फर्टिलिटी इंक्रीज हो जाए, राइट। सो इस तरह से प्रिमिटिव ये लोग झुग्गी झोपड़ी में रहते हैं, ठीक है, अपना बना के, राइट। सो ये प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग है, राइट। कमिंग टू द नेक्स्ट वन, दैट इज द कॉमर्शियल फार्मिंग। देखो कॉमर्शियल फार्मिंग का डिवीजन आपके बुक में नहीं दिया हुआ है, लेकिन फिर भी मैंने उसको यहाँ पर डिवाइड किया है। तो सबसे पहले देखते हैं कॉमर्शियल फार्मिंग क्या होता है। इट इज अ टाइप ऑफ फार्मिंग इन विच क्रॉप्स आर ग्रोन फॉर कॉमर्शियल यूज ओनली, ठीक है। ये ऐसा फार्मिंग है, इसको किया जाता है ताकि सेल किया जा सके, मार्केट में क्या किया जा सके, सेल किया जा सके, ठीक है। इसमें काफी ज्यादा कैपिटल का रिक्वायरमेंट होता है, काफी ज्यादा पैसा इन्वेस्ट किया जाता है, लार्ज अमाउंट ऑफ लैंड होता है इनके पास, लेबर भी काफी ज्यादा होता है, ठीक है, मशीन्स भी अवेलेबल होते हैं इनके पास लार्ज स्केल में, ठीक है। तो ऐसे फार्मिंग को हम कॉमर्शियल फार्मिंग बोलते हैं, ठीक है। तो ये लोग देखो यहाँ पर क्या 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 बोला मैंने, लेबर भी चाहिए, मशीन भी चाहिए, राइट, लार्ज लैंड होल्डिंग चाहिए, बड़ा लैंड चाहिए, राइट, ठीक है, अच्छा इरिगेशन फैसिलिटी चाहिए। ऑब्जेक्टिव क्या होता है इनका, टू सेल इन द मार्केट, टू सेल इन द मार्केट, ठीक है, एंड टू अर्न द प्रॉफिट। सो इसको हम कॉमर्शियल फार्मिंग बोलते हैं। कॉमर्शियल फार्मिंग के तीन तरह होते हैं। पहला होता है कॉमर्शियल ग्रेन फार्मिंग, दूसरा होता है मिक्स फार्मिंग, एंड थर्ड वन इज प्लांटेशन। कॉमर्शियल ग्रेन फार्मिंग नेम इटसेल्फ सजेस्ट दैट ये वो फार्मिंग होता है जिसमें कि ग्रेन्स का प्रोडक्शन होता है, जैसे वीट, राइस, मेज, बार्ली, राइट और नॉट। सो इन सारी चीजों का प्रोडक्शन होता है, राइट। और ये जो है, इस तरह की कॉमर्शियल ग्रेन फार्मिंग कहाँ पर होती है, ये मोस्टली वैसे एरिया में होती है जहां पर की पॉपुलेशन कम हो, लोगों की संख्या कम हो, लैंड की अवेलेबिलिटी ज्यादा हो। तो अगर आप चले जाओगे अमेरिका चले जाओगे, राइट और नॉट, जो बड़े बड़े यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका है, ब्राजील है, इन सब सारी जगह पर जाओगे तो आपको ये कॉमर्शियल ग्रेन फार्मिंग देखने को मिलेगा। इंडिया में भी आपको मिलेगा, लेकिन इंडिया में कॉमर्शियल ग्रेन फार्मिंग बहुत कम है। क्यों ऐसा है, क्योंकि इंडिया की पॉपुलेशन काफी ज्यादा हाई है, राइट। सो लोगों को लैंड नहीं मिल पाता है, लेकिन अमेरिका में काफी ज्यादा लैंड की अवेलेबिलिटी है, तो वहां पर इस तरह के फार्मिंग होते हैं। मोस्टली ये टेम्परेट ग्रासलैंड में होता है, राइट। और ज्यादातर क्या होता है, ये सिंगल क्रॉप ग्रो करते हैं, ठीक है, एक ही तरह के क्रॉप ग्रो करते हैं, या तो राइस करेंगे या तो वीट करेंगे, ठीक है। सो इस तरह के क्रॉप्स ये ग्रो करते हैं। सेकेंड है मिक्स फार्मिंग। मिक्स फार्मिंग में लैंड को दो तरह से यूज किया जाता है। पहला तो ग्रोइंग क्रॉप्स, और दूसरा रियरिंग लाइव स्टॉक्स, मतलब जो डोमेस्टिक एनिमल्स हैं उसको भी ये लोग पालते हैं, प्लस क्रॉप्स भी ग्रो करते हैं, ठीक है। तो इसको मिक्स फार्मिंग बोलते हैं, मिक्स कॉमर्शियल फार्मिंग यू कैन से। Then third one is plantation. Plantation is a single crops grown on huge area of land, right? और ये जो क्रॉप्स होते हैं ये कॉमर्शियल क्रॉप्स होते हैं, जैसे ये ग्रेन्स नहीं होते। यहाँ पर देखो ग्रेन फार्मिंग में मैंने बताया कि ग्रेन्स होते हैं, जैसे कि हमारा व्हीट है, राइस है ना। लेकिन ये जो प्लांटेशन प्लांटेशन में वैसे क्रॉप्स आते हैं जो ग्रेन्स नहीं होते। अदर कॉमर्शियल यू कैन से इंडस्ट्री में जो रॉ मटेरियल यूज होता है वैसा क्रॉप, जैसे टी हो गया, कॉफी हो गया, रबर हो गया, ठीक है, रबर को इंडस्ट्री में यूज किया जाता है, ठीक है, कैज्यू हो गया, राइट। सो दीज आर द कम्स अंडर प्लांटेशन। सो आपको ये टाइप्स याद नहीं रखने, जस्ट सिंपली आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए आपको याद रखना तीन तरह के होते हैं। बस क्वेश्चन पूछा जाएगा व्हाट इज कॉमर्शियल फार्मिंग, राइट इट्स फीचर, राइट। सो टाइप्स आपसे कोई नहीं पूछने वाला है। सो आपको फीचर्स याद रखना है। फीचर्स में आप क्या लिखोगे, सिंपल सा, लार्ज कैपिटल आर रिक्वायर्ड, ठीक है, लार्ज लैंड होल्डिंग रिक्वायर्ड, लेबर बहुत ज्यादा चाहिए, है ना, मशीन्स ये लोग यूज करते हैं, हाई अमाउंट ऑफ फर्टिलाइजर पेस्टिसाइड्स भी ये यूज करते हैं, है ना। सो दीज आर द फीचर्स ऑफ कॉमर्शियल ग्रेन फार्मिंग, राइट। सो यहाँ पर देखो आप, दीज आर द पिक्चर्स शोइंग द कॉमर्शियल ग्रेन फार्मिंग। देखो यहाँ पर कितना लंबा लंबा लैंड एरिया है और किस तरह से बड़े बड़े मशीन्स को यूज किया जा रहा है
फॉर फार्मिंग, राइट। ठीक है, लेबर्स को भी यूज किया जाता है। एंड कमिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, this is the name of this topic is cropping pattern and seasons, right? So what is cropping pattern? So I already talked about it regarding in resource and development, लैंड रिसोर्स वाले चैप्टर में हमने इसको डिस्कस किया था कि हमारा एग्रीकल्चर जो होता है वो 3 सीजन्स में होते हैं मोस्टली, राइट। पहला क्या होता है, हमारा खरीफ सीजन होता है या खरीफ क्रॉप्स जिसको बोलते हैं, राइट। ये क्रॉप्स जून में सोन किया जाता है जब मानसून हमारे कंट्री में आता है, और हार्वेस्ट कब किया जाता है, सितंबर टू अक्टूबर, राइट। सो इसको हम खरीफ क्रॉप्स बोलते हैं, राइट। इसमें कौन कौन से क्रॉप्स आते हैं, राइस, मेज, मूंग, ठीक है, कॉटन, जूट, ये सारे क्रॉप्स ऐसे क्रॉप्स हैं जिसको कि पानी की काफी ज्यादा जरूरत होती है, राइट। सो खरीफ क्रॉप, सिंपल सा बात, इन सारे क्रॉप्स को पानी, वाटर की अमाउंट काफी ज्यादा चाहिए होता है, राइट। नेक्स्ट है हमारा रबी क्रॉप्स, राइट। These are the crops which is grown during the time between October to April, right? अक्टूबर टू दिसंबर में इसको सो किया जाता है, हार्वेस्ट कब किया जाता है, मार्च टू अप्रैल में, ठीक है। एग्जांपल व्हीट, पीस, ग्राम, मस्टर्ड, ये सारे क्रॉप्स हैं जिसको हम रबी क्रॉप्स बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो क्रॉप्स हैं ये कहाँ पर ग्रो होते हैं, मोस्टली इन द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट, जैसे पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, है ना, उत्तर प्रदेश, इन सारे जगह पर रबी क्रॉप्स ग्रो किए जाते हैं, राइट। खरीफ क्रॉप्स कहाँ पर ग्रो किया जाता है, मोस्टली इन द रीजन वेयर हाई रेनफॉल रिसीव, जैसे कि हमारा आसाम हो गया, है ना, असम हो गया, कोस्टल एरिया हो गया, है ना, जो हमारा समुद्र के पास वाला एरिया है वहां पर, ठीक है। दूसरी बात यह है कि ऐसा आज के डेट में चूंकि मॉडर्न फार्मिंग होता है, ऐसा हम क्लियर डिफाइन नहीं कर सकते कि रबी क्रॉप्स कहाँ पर ग्रो होगा, खरीफ क्रॉप्स कहाँ पर ग्रो होगा। आजकल ऐसे एरिया में भी खरीफ क्रॉप्स ग्रो किए जा रहे हैं जहां पर कि रेनफॉल कम होता है। क्यों क्यों किए जा रहे हैं, क्योंकि वहां पर इरिगेशन फैसिलिटी, सिंपल सी बात है, जहां पर इरिगेशन फैसिलिटी अच्छी होगी, ठीक है, वहां पर खरीफ क्रॉप्स ग्रो कर सकते हैं, अंडरस्टूड। जैसे मान लेते हैं कि आज अगर हम बात करते हैं आंध्र प्रदेश की, ठीक है, आंध्र प्रदेश में अगर बारिश अच्छी नहीं भी हो रही है तो फिर भी वहां पर हम क्या कर सकते हैं, राइस ग्रो कर सकते हैं। कंडीशन ये है कि वहां पर इरिगेशन फैसिलिटी होनी चाहिए, राइट। सो नेक्स्ट है हमारा जैद क्रॉप्स, राइट। जैद क्रॉप्स ये बहुत शॉर्ट सीजन में ग्रो होता है ड्यूरिंग द मंथ ऑफ मार्च एंड अप्रैल, राइट। और यू कैन से अप्रैल अप्रैल एंड मई, राइट। ये समर सीजन में अप्रैल और मई में क्या होता है, काफी ज्यादा गर्मी होती है, ड्यूरिंग दैट टाइम वाटरमेलन, मस्क मेलन, ककम्बर, राइट, या वेजिटेबल्स इस सीजन में ग्रो होते हैं, राइट। तो ये 3 क्रॉपिंग सीजन्स हैं, आपको याद रखने हैं, ठीक है। क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड, राइट द 3 क्रॉपिंग सीजन्स ऑफ इन एग्रीकल्चर, राइट, ठीक है। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म क्रॉपिंग सीजन्स, राइट। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछेंगे तो आपको यही लिखना है, कौन कौन से क्रॉप ग्रो किए जाते हैं, कौन से मंथ में ग्रो किया जाता है, ये सारे डिटेल्स आपको लिखने हैं, राइट। याद कैसे करेंगे कौन कौन से मंथ में, देखो हमेशा याद रखना कि हमारा जो एग्रीकल्चरल सीजन होता है जून से हम मानते हैं कि स्टार्ट होता है। टेक एन एग्जांपल कि मानसून कब से स्टार्ट होता है, मानसून हमारे कंट्री में कब आता है, जून में आता है, राइट। तो जून से स्टार्ट करना, जून के मंथ में पहला के अल्फाबेट देखो, ए टू जेड अगर आप काउंट करोगे तो के पहले आता है, राइट। अल्फाबेट में के पहले आता है, देन आर, देन जेड। के फॉर खरीफ कब से स्टार्ट होता है, जून से स्टार्ट होता है। आर फॉर रबी कब से स्टार्ट होता है, अक्टूबर से स्टार्ट होता है, सोइंग सीजन। एंड जेड फॉर जैद कब से स्टार्ट होता है, अप्रैल से, राइट। सो ये 3 आपको याद रखना है अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, के आर जेड, जून, अक्टूबर, अप्रैल, राइट। तो इससे आपको याद रहेगा कि कौन कौन से सीजन में, कौन कौन से मंथ में कौन कौन सा क्रॉप ग्रो होता है। सो अगेन हियर यू कैन सी सेम थिंग आई मेंशन हियर, राइट। 3 क्रॉपिंग सीजन जो हमारे हैं वो मेंशन किया है, आप एक बार देख लेना। एंड दिस इज अनदर वे, आप यहाँ पर भी देख सकते हो कि कौन कौन से मंथ में कौन कौन सा क्रॉप ग्रो होता है। रबी क्रॉप्स में कौन कौन से क्रॉप्स आते हैं मैं आपको दिखाता हूँ एक एक करके। देखो हमारा वीट है, बार्ले है ना, पीस है, ग्राम्स,
मस्टर्ड, ठीक है। सो ये सारे एरियाज है जहां पर कि क्रॉप्स ग्रो किए जाते हैं। दीज आर ओनली फॉर योर नोट्स पर्पस, आपको ये नोट्स के लिए रखना है, आपको याद करना है, ठीक है। जो हमारा पंजाब वाला एरिया है यहाँ पर भी रबी क्रॉप्स ग्रो होते हैं बिकॉज ऑफ वेस्टर्न टेम्परेट साइक्लोन। मैंने आपको बताया था कि पंजाब वाले एरिया में जनवरी के समय में बारिश होती है, राइट। क्यों होती है? वेस्टर्न टेम्परेट साइक्लोन की वजह से होती है। याद करो क्लास 9th क्लाइमेट चैप्टर, राइट। सो यहाँ पर ये सारे क्रॉप्स ग्रो होते हैं। नेक्स्ट हमारा है, देखो यहाँ पर ये इट इज शोइंग द एरिया, ठीक है। ये एरिया आप देखो, wheat producing area, wheat एक रबी क्रॉप्स है, राइट। देन कमिंग टू द नेक्स्ट खरीफ क्रॉप्स। खरीफ क्रॉप्स में कौन कौन सा क्रॉप आता है? अरहर है, राइट। देन हमारा कॉटन क्रॉप्स है, ज्वार है, ग्राउंड नट्स है, बाजरा है ना, ज्वार सीड्स, जूट, मूंग, पैडी, मेज, उड़द, सोयाबीन, ठीक है। सो दीज आर द रीजन सॉरी दीज आर द क्रॉप्स विच कम्स अंडर खरीफ क्रॉप्स। जैद क्रॉप्स में कौन कौन सा आता है? जैद क्रॉप्स में वाटरमेलन है, ठीक है, बीटर ग्रॉड है, मस्क मेलन, ककम्बर। सो दीज आर द क्रॉप्स कम्स अंडर जैद क्रॉप्स। सो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। टुमारो ऑनवर्ड्स वी विल डिस्कस the major crops of India, right? So thank you. Have a nice day.